एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो follow us on Instagram and Telegram. The link is given below. Today we will continue our most important MCQ of IPC as well as Constitution. In our previous video we have already dealt 15 MCQ of IPC and 15 Constitution. So now we will continue. First we will deal with IPC MCQ and then Constitution. IPC MCQ question number 16th. A instigate B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C and C committed murder of Z. Who will be liable for punishment? Option A, only C. Option B, only B. Option C, only C and B. Option D, A, B and C. So 16th में ये बोल रहा है कि जो A B को इंस्टिगेट करता है क्या कि तुम C को इंस्टिगेट करो Z का मर्डर करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग जो B C को इंस्टिगेट करता है और C मर्डर कमिट कर देता है Z का। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन पर्सन लाइबल होंगे पनिशमेंट के लिए। करेक्ट आंसर इज D, दैट इज A जिसने इंस्टिगेट किया था B को, B जिसने इंस्टिगेट किया था C को। मूव फर्दर 17th. A instigate B to burn Z's house. B set fire the home and at the same time commit theft of the property. There A is guilty of option A, abetting burning of Z's house only. B, abetting burning of house and theft. C, theft only. D, none of the above. So 17 से बोल रहा है कि A ने B को इंस्टिगेट किया कि तुम जाके Z का हाउस को आग लगा दो। B ने आग तो लगा दी, उसी के साथ साथ उसने थेफ्ट भी कमिट कर दिया है। तो ये पूछ रहा है कि जो A है जिसने इंस्टिगेट किया था वो कौन से ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। करेक्ट आंसर इज A, ओनली फॉर अबेटिंग बर्निंग ऑफ हाउस। मूव फर्दर 18th. Which of the following is essential for an offence under section 114 of Indian Penal Code? Option A, there was abatement by accused. Option B, the act was actually committed in pursuance of abatement. C, the accused was present while the act was being committed. D, all of the above. Correct answer is D. So for an offence committed under section 114 of Indian Penal Code, there must be an abatement by the accused. और जो जिस चीज के लिए accused को बोला गया था, अबेट किया गया था, वो सच में किया जा रहा है और जो accused है जिसने इंस्टिगेट किया था वो प्रेजेंट था जब वो एक्ट कमिट किया जा रहा था। मूव फर्दर 19th. To constitute an offence of criminal conspiracy under Indian Penal Code, what is the necessary condition to be proved? Option A, there must be a prior meeting of two or more person. B, there must be an agreement of two or more person to do an act, to do an illegal act, or to do a legal act by illegal means. Option C, a person does an illegal act with the help of two or more persons. Option D, two or more persons committed crime on a sudden provocation with guilty mind. Correct answer is B. So, to constitute an offence of criminal conspiracy under Indian Penal Code कि जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं वो या तो एक इलीगल एक्ट कमिट करते हैं या फिर लीगल एक्ट कमिट करते हैं, किसके थ्रू? इलीगल एक्ट मीन्स के थ्रू, तो वो हम मानेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस है। मूव फर्दर 20. Which one of the following statement is correct? Option A, in conspiracy there is no distinction between principal and accessory. Option B, conspiracy, principal and accessory are distinct. Option C, there has to be a distinction between principal and accessory in all offenses. Option D, none of the above is correct. So correct answer is A, that is in conspiracy जो प्रिंसिपल और एसेसरी होता है उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मूव फर्दर 21. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? सो हमें ये बताना है कि अगर किसी पर्सन ने
अबेटमेंट के थ्रू कॉन्स्पिरेसी की है और एक ऑफेंस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए, इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी मेयर एग्रीमेंट इज इनफ, whereas in case of abatement by conspiracy an act should have taken place in pursuance of conspiracy. Option B, there is no difference at all. Option C, in case of conspiracy an act should also have taken place, but in case of abatement by conspiracy no act need to have taken place. Option D, in case of abatement by conspiracy there need not to be an agreement, whereas in case of criminal conspiracy agreement is essential. So correct answer is A. So जो basic difference है criminal conspiracy में and abatement by conspiracy में की है, criminal conspiracy में तो एक agreement ही enough है कि दो पर्सन ने एग्रीमेंट किया है कि हाँ हम ये काम जाके करेंगे। लेकिन अगर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की बात हो रहा है तो वहां पे एक एक्ट है जो कि उस कॉन्स्पिरेसी के लिए उस परसुएंस में जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जरूर नहीं है कि वो एक्ट कमिट ही होना चाहिए। अगर आपने सोच ही लिया है कि हाँ ये दो लोग मिलके कि हम ये एक्ट कमिट करेंगे तो भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही होगी। Further, 22nd, under which of the following section of the Indian Penal Code a conspiracy to wage war against the government of India is punishable? Option A, section 120, B, section 120A, option C, section 121, option D, section 121A. Correct answer is section 121 में अगर किसी भी पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो पनिशेबल है। मूव फर्दर, 23rd, whoever wage war against the government of India or attempt to wage war shall be punished with option A, imprisonment up to 14 years with fine, B, death or imprisonment for life with fine, C, imprisonment up to 10 years with fine, D, imprisonment up to 7 years with fine. Correct answer is B, that is death or imprisonment for life with fine अगर किसी भी पर्सन ने वेज वॉर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट या फिर अटेम्प्ट भी किया है वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मूव फर्दर, 24th, which of the following is neither an offense against person nor against property? Option A, cheating, B, sedition, C, रॉबरी, डी, मर्डर। सो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है इन चारों में से जो कि ना ही ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन है ना ही ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेडिशन। मूव फर्दर, 25th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल एज सेडिशन? तो हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑफेंस है जो कि सेडिशन की तरह पनिशेबल होगा। Option A, bitter criticism of the government to overthrow it. B, inducing people to cease to obey law and lawful authority. C, a publicist attack on the policies of the government. D, an attempt to remove the minister from power. Correct answer is B. So अगर किसी भी पर्सन ने अगर इंड्यूस किया है अदर पर्सन्स को कि आप ये जो लॉ बनाया है हमारे गवर्नमेंट ने उसको फॉलो ना करो या फिर जो लॉफुल अथॉरिटी है उसको ओबे ना करो, तो ये हम बोल सकते हैं कि उसने सेडिशन का ऑफेंस कमिट किया और वो पनिशेबल है। मूव फर्दर, 26th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रिपरेशन इज पनिशेबल? सो हमें ये पता लगाना है, यहाँ पे सिर्फ प्रिपेयर किया जा रहा है कि हाँ हम ये ऑफेंस कमिट करने वाले हैं, अब तक किया नहीं है, तो वो कौन कौन से सेक्शन में है। ऑप्शन ए, सेक्शन 121, 125, 398, ऑप्शन बी, सेक्शन 122, 125, 399, ऑप्शन सी, सेक्शन 122, 126, 399, ऑप्शन डी, सेक्शन 121, 126, 398. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अंडर सेक्शन 122, section 126, section 399 preparation is punishable. Move further, 27th,
promoting enmity between different groups on the ground of religion, race, place of birth, resident, language, etc., and doing and prejudicial to maintain the maintenance of the harmony is punished under which of the following section? Option A, section 151, B, section 153, C, section 153A, D, सेक्शन 153B। सो ये बोल रहा है 27 में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर किसी भी पर्सन ने प्रोमोट किया एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स है, किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीजें, इन सबके बेसिस के ऊपर अगर एनिमिटी प्रोमोट की है तो वो पर्सन अंडर सेक्शन 153A में पनिशेबल है, उसका जो ऑफेंस उसने जो किया है। मूव फॉर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डील विथ vicarious liability? Option A, section 150, B, section 152, C, section 154, D, section 159. Correct answer is C, that is section 154 deals with vicarious liability. Move for the 29th, when two or more persons fight in a public place and commit breach of peace, they committed option A, riot, B, रॉबरी, सी, एफरे, डी, नो ऑफेंस। सो अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने कोई फाइट क्रिएट की है या फिर फाइट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो उन दो या दो से ज्यादा लोगों ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एफरे। 30, अ प्राइवेट डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक refused to provide medical treatment to B, a victim of acid attack. A is liable under which of the following section of Indian Penal Code? Option A, section 166, B, section 166A, C, section 166B, D, section 167. So 30 में बोल रहा है कि A है एक प्राइवेट डॉक्टर जो कि अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है, और जो बी होता है जो कि एक विक्टिम होता है एसिड अटैक का, उसको वो मना कर देता है कि वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ए, तो ये पूछ रहा है कि ए कौन से सेक्शन के अंदर लाइबल होगा अंडर आईपीसी? करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अंडर सेक्शन 166B इज लाइबल। सो हम 15 एमसीक्यूज डील कर चुके हैं इंडियन पिनल कोड के। मूव फर्दर, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्दर 15 एमसीक्यूज को डील करेंगे। 16th, what are the directive principle of state policy? Option A, the main objective of the framers of the constitution. B, the principles that are expected to guide the state in a good governance of the country. C, the ideal of a welfare state that should be acceptable to all rights thinking person. D, social rights as approved to personal rights enumerated in part 3rd. So इसमें पूछा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इन चारों ऑप्शंस में से क्या है? करेक्ट आंसर इज बी। सो जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है? एक प्रिंसिपल है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो हमारे जो कंट्री के जो भी स्टेट्स है उनको गुड गवर्नेंस में हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। मूव फर्दर 17th, by which constitutional amendment has Article 39A has been inserted in the directive principle of state policy? Option A, the Constitution 42nd Amendment Act 1976. B, the Constitution 44th Amendment Act 1978. C, the Constitution 46th Amendment Act 1982. D, the Constitution 29th Amendment Act 1972. Correct answer is A. So, by the Constitution 42nd Amendment Act 1973 जो हमारा आर्टिकल 39A है वो इंसर्ट किया गया था हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। मूव फॉर द 18th, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू A, इक्वालिटी बिफोर लॉ, B, equality of opportunity in matter of public employment, C, equal justice and free legal aid, D,
right of minorities to establish and administration educational institution. So correct answer is C, that is equal justice and free legal aid, जो हमारा 39A है आर्टिकल, वो प्रोवाइड करता है. Move further. 19th, in which of the following article of the Constitution provision regarding uniform civil code has been given? Option A, Article 43, B, Article 44, C, Article 46, D, Article 47. So correct answer is B, that is Article 44 है हमारा, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहा है. Move further. 20. The protection and improvement of environment, including forest and wildlife of a country, are in option A, directive principles, B, fundamental duties, C, national policy, D, both directive principles and fundamental duties. Correct answer is D. So जो हमारा प्रोटेक्शन है और इम्प्रूवमेंट है किसका? एनवायरमेंट का, जो कि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड कर रहा है कंट्री के, वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है एज वेल एज जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी है. मूव फर्दर. 21st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट अ गांधीयन प्रिंसिपल? ऑप्शन ए, द स्टेट शेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स. बी, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट cottage industries. C, the state shall take step for preservation and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and other cattle. D, the state shall endeavor to secure a uniform civil code through the territory of India. So, इन चारों में से हमें पता लगाना है कि कौन सा जो एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस नहीं है. करेक्ट आंसर इज D, that is the state shall endeavor to secure a uniform civil code through the territory of India. Move further. 22nd, the Constitution of India recognize international law under option A, Article 51 and Article 253, option B, Article 51 and Article 252, option C, Article 50 and Article 253, option D, Article 50 and Article 252. Correct answer is A. So Article 51 and 253 जो कि हमारा इंटरनेशनल लॉ है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है. मूव फर्दर. 23rd, the number of fundamental duties under the Indian Constitution is option A, 10, B, 11, C, 12, D, 13. जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A के अंदर वो टोटल कितनी है हमें पता लगाना है. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जो हमारे जो टोटल कितनी ड्यूटीज दी हुई है 11 ड्यूटीज दी है हमारे आर्टिकल 51A में. मूव फर्दर. 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, टू प्रमोट सोवरेनिटी. बी, to defend the country. C, to respect national anthem. D, to promote Indian culture. So 24 ये पूछ रहा है कि इन चारों में से हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है किसकी? हमारे जो सारे सिटीजन है इंडिया की उनकी. करेक्ट आंसर इज D, to promote Indian culture is not a fundamental duty. 25th, the executive power of the union is vested in option A, union cabinet, B, Prime Minister, C, President of India, D, Union Council of Minister. Correct answer is C. जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है. मूव फर्दर. 26th, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स इज A, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, B, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, C, डिफेंस मिनिस्टर, D, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. करेक्ट आंसर इज B. जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स होते हैं. मूव फर्दर. 27th, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय A, members of electoral college, B, the elected members of both house of parliament, C, the elected members of legislative assemblies of state, D,
नन ऑफ द अबाउ। सो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज बी। सो बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इलेक्ट किए जाएंगे। मूव फर्दर 28th। हु डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, सी प्रेसिडेंट्स नॉमिनी इन राज्यसभा, डी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। करेक्ट आंसर इज सी। तो जो हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनी होता है राज्यसभा में उसके पास राइट नहीं है वोट के लिए। मूव फर्दर 29th। Which one of the following is a part of electoral college for the election of president but does not participate in the proceeding of his or her impeachment? So ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेंबर है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज का जिसके पास जब वो इलेक्शन होता है किसके? प्रेसिडेंट के लिए, कि जब उनको इलेक्ट किया जाएगा उसके लिए तो उसके पास राइट है, लेकिन जब उनको इम्पीच किया जाएगा मतलब जब उनको हटाया जाएगा जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं उसमें वो राइट नहीं है पार्टिसिपेट करने का। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। करेक्ट आंसर इज सी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में राइट नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करे जो हमारी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स है प्रेसिडेंट को हटाने की उसमें। मूव फर्दर 30 एंड लास्ट वन। हु डिसाइड अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी पार्लियामेंट, डी सुप्रीम कोर्ट। सो अगर हमारा जो इलेक्शन हो रहा है मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और उससे रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कौन डील करता है उस चीज को? करेक्ट आंसर इज सी। सो आज हमने वापस से जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी 15 एमसीक्यूज को डील कर चुके थे आईपीसी के और 15 कॉन्स्टिट्यूशन के। आज हमने फिर से 15 हमने आईपीसी के डील किए हैं और 15 कॉन्स्टिट्यूशन के डील किए हैं। थैंक यू।